टर्म यूज किया है क्या? A voltage regulator is a circuit which supplies the constant voltage, है ना? That we have studied. Rather, we have used Zener diode as a voltage regulator, if you can recall, isn't it? Constant voltage regardless of changes in load currents. So, irrespective of the load current, means if the load is heavy or small, if it maintains the constant voltage, we'll say it is acting as a voltage regulator. So, this is generally classified into, you can say, voltage regulator. One is series or linear voltage regulator. If you have studied that one, okay, series or linear regulator. And the second is switching regulator. Switching regulator. So if you can recall, or you know, SMPS in computer, that works on the principle of switching regulator, where the transistor or the series pass element is used as a in its switching, means it only on and off, whereas when we operate that as in the linear mode, that is active, then it acts as a series regulator. Okay, so that is the difference. Again, this can be, all this can be classified as fixed and variable. So there may be a case where you can have the fixed voltage or you can have the variable. Variable means it is not constant. It's not like that. Variable means we are able to vary the supply. So you have studied the or you have seen the variable power supply in laboratory, and that you vary and it maintains the constant voltage whatever in whatever setting you put it. If you set it for 9 volt, it will remain on that 9 volt. If you set it for 7 volt, it will remain in that one. Again, it can be classified as positive and negative voltage regulator. So these are the way it can be classified. In this linear regulator, here in linear regulator, the power transistor or any element, power, usually transistor we use, connected in series between unregulated DC input and the load. Okay, that's why it is known as series voltage regulator. Have you studied the series voltage regulator in your earlier subject? आपको था क्या series voltage regulator? Yes, sir. Yes, हाँ, वही मैं बोला, यानी आपको थोड़ा मालूम है. So, and on contrast, the switching regulator, we don't have that in much detail. Only 7/8 series IC we have to study. It operate power transistor as high frequency switch. High frequency, you can say on-off switch. Switch means it will on or off. That is at a rate of such that a regulator delivers the average or desired, you can say desired average current in periodic pulses to the load. Suppose इस तरीके से आपको स्विच आपके पल्सेस मिल रहे हैं, ऐसे मान के चलो, तो इसको एक टी ऑन बोलते हैं, इसका टी ऑफ. तो टाइम पीरियड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड होगा. डू यू नो द ड्यूटी साइकिल? क्या होता है ड्यूटी साइकिल? ये टर्म आने वाला है अपने को. इट इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू टोटल टाइम. दैट इज टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. And when it is measured in percentage, so it is like T on by T into 100. इसका क्या मीनिंग है? अगर आपका ये स्क्वायर पल्स है, दोनों T on और T off सेम है, तो कितना होगा इसका ड्यूटी साइकिल? बताओ तुम. So T on upon T on plus T off is equal to T on upon double T on, क्योंकि ये दोनों सेम हैं. So it will be 1/2. That will be 1/2 into 100 means 50%. So 50% means duty cycle is square wave. It is perfect square wave means 50% duty cycle. Suppose T on is less than T off, तो कितना होगा? मान के चलो ये T on है, ये T off है, ठीक है. ये मान के चलो कि ये टाइम है 1/4 और ये है 3/4 अप 1, ठीक है. ये 1 सेकेंड का हाफ 1/4 ये है और 3/4 ये है. तो कितना होगा इसका ड्यूटी साइकिल? कौन बताएगा फास्ट में? इसका ड्यूटी साइकिल कितना होगा? इफ टी ऑन इज 1/4 एंड टी ऑफ इज 3/4, इसका ड्यूटी साइकिल कितना होगा? ये इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड हैव द आइडिया कितना होगा. नहीं बताओगे क्या? सर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो 1 हो जाएगा वो, बराबर है. 1/4 इंटू 100 कितना होगा? 25%. सो यू शुड हैव द आइडिया कि जब ये 50 से कम बोल रहा है तो ऑन टाइम छोटा हो रहा है. इसका नेचर इस तरह दिखना चाहिए. अब जैसे दूसरा मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ, ये 3/4 है, ये आइडिया आने के लिए. ये अब टी ऑन बड़ा है और टी ऑफ छोटा सा है, 1/4 ये.
तो अब यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कितना होगा, 3/4 प्लस 3/4 इंटू 100। तो 3/4 ऑफ 100 मीन्स कितना हो जाएगा, 75%। तो 50% से आगे जा रहा है तो ये ऑन टाइम बढ़ रहा है, 50% है तो दोनों इक्वल है, और 50% से कम है तो ऑन टाइम छोटा हो रहा है। ये आइडिया आना चाहिए आपको। और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है मालूम है क्या, ये जो इस तरह का हाई पल्स मिला अगर, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है अगर इसको फिल्टर के थ्रू निकाले तो ये एवरेज वल ड्यूटी साइकिल इंटू यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ये जो लेवल है, ये जो भी लेवल है, सपोज ये 0 to V वोल्ट है यहाँ पे हाई लेवल, तो ये ड्यूटी साइकिल इंटू V होता है। मतलब यहाँ पे कितना आया रहता है एवरेज वैल्यू, अगर इक्वल है तो 0.5 इंटू V मतलब हाफ हो जाएगा, V/2, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये एवरेज वैल्यू है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0.25 इंटू V मतलब 1/4 ऑफ V, तो ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे रहेगा, कम रहेगा। और ये एवरेज वैल्यू कितना रहेगा, देखो ऑन टाइम ज्यादा है, एवरेज वैल्यू बढ़ रही है अगर आप देखेंगे तो ये 3/4 इंटू V या 0.75 V, तो ये एवरेज वैल्यू इतनी ऊपर दिखाएगा, ये इस टाइप से आ रहा है ना आपके ध्यान में, एवरेज वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ऑन टाइम यहाँ पे ज्यादा है ऑफ टाइम की अपेक्षा। और ऑन टाइम अगर फुल है मतलब, तो ये कैसा आएगा, अगर ये पूरी एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, तो आपका ऑन टाइम आएगा और ऑफ टाइम है ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये 100% हो जाएगा। तो V एवरेज इज इक्वल टू V हो जाएगा, मतलब यही वैल्यू वैल्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया। तो स्विचिंग में हम ट्रांजिस्टर इस तरह यूज करते हैं कि ये इस तरीके की पल्सेस मिलती है, तो हम इस तरीके से एवरेज वैल्यू वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं, इसका ऑन टाइम टोटल टाइम से कंपेरेबल करके, कम या ज्यादा, अगर हमको बढ़ाना है तो हम ऑन टाइम बढ़ाएंगे, अगर कम करना है तो ऑन टाइम छोटा रखेंगे। सो यू आर गेटिंग दिस आइडिया। थोड़ा सा हल्के से मैंने जानबूझ के आइडिया बताया, ये आपको इतना बताना नहीं था, लेकिन ये मालूम होना जरूरी है क्योंकि ड्यूटी साइकिल टर्म आपको मालूम होना चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू द टोटल टाइम। ओके, अच्छा, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर आपने पढ़ा है ना? यस सर। ओके, मैं इसीलिए वो जो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में आपने क्या क्या देखा याद आ रहा होगा। तो एक सीरीज पास एलिमेंट है, इमीटर फॉलोअर में ट्रांजिस्टर रहता है, एक एरर एम्पलीफायर बताया है, एक R1 R2 का नेटवर्क बताया है, बराबर है ना, और एक जीनर डायोड रहता है। याद आ रहा है क्या? तो हम लोग अपने ऊपर चले जाते हैं जो हमको की पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज फिक्स्ड वोल्टेज linear regulator. Okay, so in your course you have 3-pin IC। हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर के लिए आईसी है एक 7/8 सीरीज की आईसी आती है, ठीक है, विच इज ए 3 टर्मिनल पॉजिटिव फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर। और एक होती है 7/9 सीरीज की, ये भी 3 टर्मिनल है लेकिन ये निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। दीज आर अवेलेबल इन 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 volt, 15, 18 and 24 volt. Similarly in the negative, -5, -6, -8, like that it is available. It is available in different package you can say. जैसे ट्रांजिस्टर 3 पिन का दिखता है, मेटल पैकेज में है। ये पैकेज अब थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए आपको, है ना। DIP कैसे रहता है, यानी कि TO3 टाइप का टाइप है ये। देन प्लास्टिक में भी आता है, प्लास्टिक पैकेज। एक बार ये सर्च करना गूगल पे कि TO220 कैसे दिखता है। आपने वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी यूज किया है क्या? नहीं किया होगा आपने, शायद मुझे दिखा है ना, देखा है ना, इस टाइप का। देखो 7809 यूज किया, ये क्या है ना, ये इस टाइप का रखा होगा, इस टाइप का दिख रहा होगा, देखो ये इस टाइप का। ये TO220 पैकेज है, इस तरह का जो रहता है, एक टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल, ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो 7/8 के आगे जो आंकड़े रहते हैं ना, वो बताता है कि उतना वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। जैसे 7805 मींस इट इज मिंट फॉर 5 वोल्ट, 7809 इट मींस +9 वोल्ट। अगर 7905 तो इसका मतलब -5 वोल्ट, 7912 इसका मतलब -12 वोल्ट, लाइक दिस। इसमें होता है, अगर आप मेटेलिक पीछे रख दे, ठीक है, मेटेलिक पीछे रख दे, तो ये पिन नंबर 1 2 3, तो पिन नंबर 1 होता है, पिन 1 इज इनपुट। ये बहुत इजी और सिंपल और हम लोग यूज करते हैं। मेरे ख्याल से डिजिटल का हम लोगों ने एक्चुअली ब्रेडबोर्ड पे प्रैक्टिकल नहीं किया, नहीं तो क्या करते हैं, मैं क्या करता था, ब्रेडबोर्ड पे करने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी लेने लगाता था। ये 9 वोल्ट की बैटरी से हम इसका पॉजिटिव और निगेटिव, फिर इसको 7805 को देने लगाता था, जिससे यहाँ हमको 5 वोल्ट मिलता है फिक्स। तो वो हम TTL के लिए, TTL IC के लिए यूज करते थे। यहाँ पिन 1 इनपुट है और पिन 2 है ग्राउंड और पिन 3 है आउटपुट।
क्या करते थे, इसका पिन 1 को इसका पॉजिटिव लगा दिया, पिन 1 को 2 ये ग्राउंड कर दिया, तो ये इसका निगेटिव जो है ये ग्राउंड कर दिया इसको। ठीक है, ये इनपुट साइड हो गई। अब आउटपुट साइड में ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम अगर यहाँ पे वोल्टेज लेंगे तो हमको ये फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे अनरेगुलेटेड इनपुट दे सकते हैं आप। ये बैटरी क्या होती है, कम ज्यादा होती है, 9 वोल्ट है, फिर में 8 हो जाएगी, 7 हो जाएंगी, इस तरीके से स्टिल हमको यहाँ 5 वोल्ट फिक्स मिलेगा। अब कितना इनपुट रहना चाहिए कि इसको बोलते हैं ड्रॉप इन वोल्टेज। ड्रॉप इन वोल्टेज मीन्स for 7/8 series or 7/9 series, the drop in voltage is 2 volt. It means input should be 2 volt more than the requisite output at the 7/8 series regulator IC. It means अगर आप 7812 लगा रहे और आप चाहते कि 12 वोल्ट मिले तो मिनिमम वोल्टेज एट द इनपुट शुड बी 12 + 2 14 वोल्ट मिनिमम। आप यहाँ तो 15, 16, 18 कितने तक के दे सकते हैं, अबाउट 40 वोल्ट तक के दे सकते हैं, स्टिल आपको इतना ही फिक्स वोल्टेज मिलेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए है तो मैं कौन सी आईसी यूज करूं और उसके इनपुट में मिनिमम कितना वोल्टेज दूं? चलो 7805। यस, वेरी गुड, ये तो ठीक हो गई, ये फिक्स हो गया। अब इनपुट कितना रहना चाहिए? 7। हाँ, मिनिमम बोलो, मिनिमम 7 वोल्ट, मतलब इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 7 वोल्ट। समझे? अगर 7 से कम हो गया ना तो ये रिजल्ट बरोबर नहीं देगा, देयर विल बी अ एरर, क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म चलाने के लिए जो मिनिमम बायसिंग लगता है ना, तो दैट वन शुड हैव। तो इसका डायग्राम कैसे रहता है मैं एक बार बता देता हूं आपको। सपोज दिस इज द 7805 IC and if it is pin 1, if it is pin 2, if it is pin 3, it is expected pin 2 will be grounded, and between pin 1 and 2 if you are giving unregulated input व्हील, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज करते हैं सिरेमिक वाला, इसको हम इनपुट साइड का है इसलिए CI लिखेंगे एंड इट्स वैल्यू शुड बी 0.33 माइक्रोफैराड। सिरेमिक टाइप का कैपेसिटर यूज कर रहे हो, 0.33 माइक्रोफैराड है। दिस इज ग्राउंडेड और आउटपुट में एक और कैपेसिटर कपलिंग लगाते हैं। ये सब नॉइजेस कम करने के लिए करते हैं। इसकी वैल्यू होना चाहिए 0.1 माइक्रोफैराड। ये आप वैल्यू याद रख लो, ऊंचा या इस तरीके से, तो आपको मालूम है। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? रेगुलेटेड DC आउटपुट। मोस्टली ये टेंटेलम यूज करते हैं, नहीं रहा तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। टेंटेलम थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा होती है, लीकेज कम होता है, थोड़ा महंगा होता है टेंटेलम का। कैपेसिटर CI ये हम 0.33 माइक्रोफैराड का यूज कर रहे हैं, इज यूजुअली कनेक्टेड between input and ground to cancel inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आएगा? अगर ये वायर जितना दूर वगैरह जाते हैं ना, ये वायर्स में एक इंडक्टिव इफेक्ट आता है ड्यू टू लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज इनपुट साइड और रेगुलेटर साइड में डिस्टेंस है तो उसमें जो लीड्स रहेंगे ना, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है लीड्स में। सो टू अवॉइड दैट, टू कैंसल दैट, वी कनेक्ट दिस कैपेसिटर। Output capacitor CO 0.1 microfarad improves the transient response. So these are the purpose of this one। जब भी मैंने TO3 पैकेज बताया ना, TO3 पैकेज कैसे दिखता है, आपने पावर ट्रांजिस्टर मेरे ख्याल से देखा होगा, ये इस टाइप का रहता है। आपने जो आप रेगुलेटर ये यूज किए ना, रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो लैब में, तो पीछे हीट सिंक लगा होता है, तो उसमें देखोगे तो इस टाइप का वो हीट सिंक को लगा रहता है। देखो इस तरह का, ये आंख जैसे रहता है। यहाँ 2 लीड्स रहते हैं, ये स्टील पोर्शन है, ये स्क्रूइंग के लिए है। तो ये जो है ये आउटपुट रहता है टर्मिनल, ये जो है इनपुट रहता है, और जो बॉडी है वो ग्राउंड का काम करती है। ठीक है, तो इसको पैकेज बोलते हैं हम TO3 टाइप। और जो आपने यूज किया है वो तो मालूम है आपको, फिर भी मैं बना रहा हूँ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे होल रहता है, आपने देखा होगा, लीड्स रहते हैं इस तरह। देखिए ये है TO220, ये बहुत पॉपुलर है, इस तरीके हम लोग बहुत बार यूज करते थे। TO220 टाइप, एज यूजुअल 1 इज इनपुट, 2 इज ग्राउंड, 3 इज आउटपुट। सेम इज द केस फॉर निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अगर आपको मालूम रहना चाहिए। आप लोगों ने ये टर्म पढ़ चुके, फिर भी मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। जब रेगुलेटर की बात आती है तो क्या क्या टर्म यूज करते हैं हम?
line or input regulation. One term is line or input regulation. What is it? It is defined as the change in output voltage for a change in the input voltage. मतलब इनपुट लाइन के वेरिएशन के कारण अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है तो उसको लाइन रेगुलेशन बोलेंगे एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज वोल्टेज ऑफ वीओ। इसके कारण अगर चेंज आया तो जो वेरिएशन है वो ये इनपुट और लाइन रेगुलेशन कहलाता है। सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फॉर चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इफ देयर इज अ 5 वोल्ट है और सपोज 10 वोल्ट है और 12 वोल्ट हो गया या 11 वोल्ट हो गया, इसके कारण जो आउटपुट में वेरिएशन आता है मतलब डेल्टा वीओ बाय डेल्टा वी इन, तो ये आप बोलेंगे लाइन रेगुलेशन है। सो इट शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम। ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन होना ही नहीं चाहिए ना। टिपिकल वैल्यू फॉर 7805 इज 3 मिलीवोल्ट। इतना वेरिएशन होता है। नाउ दूसरा टर्म किसके कारण चेंज होता है आप बताओ? दूसरा चेंज होता है लोड के कारण, या तो है ना? यस, वेरी नाइस, लोड के कारण। तो लोड रेगुलेशन, एक तो इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा या लोड आप कम ज्यादा कर रहे हो, लोड ज्यादा बढ़ गया तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, तो देयर विल बी अ चेंज। सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। चेंज काय में रहेगा? आउटपुट वोल्टेज में ही रहेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे हीरो कौन है? इंटेंडेड क्या है? आउटपुट वोल्टेज। वी आर aiming for output voltage. Now it is being varied due to variation in one is input voltage, another is load. So it is defined as the change in output voltage for change in load current, and it is also expressed in millivolt or percentage of VO. So typical value, इससे आपको आइडिया आना चाहिए करके आप डेटा शीट अगर देखेंगे, कभी इंटरेस्ट हो तो एक आधे आईसी जो आपने पढ़ा है उसका कभी तो भी डेटा शीट जरूर देखना चाहिए। इसका है 15 मिलीवोल्ट फॉर कितना वेरिएशन? 5 मिली एम्पियर टू 1.5 एम्पियर। इतना अगर वेरिएशन लोड 5 मिली एम्पियर से 1.5 एम्पियर तक अगर गए, उसके 1000 टाइम भी गए, तो वेरिएशन सिर्फ 15 मिलीवोल्ट का होता है। दैट इज नोन एज लोड रेगुलेशन। थर्ड टर्म इज रिपल रिजेक्शन। इट इज दी मेजर। अब रिपल्स रहते हैं कि नहीं अपने को मालूम है ना, अपन एसी टू डीसी जब करते तो प्योर डीसी नहीं होता है, तो देयर आर सम आरएमएस वैल्यू एसी इंट्रोड्यूस इनटू इट एंड व्हिच वी रिमूव बाय फिल्टर, but still if there is some more ripples, so how it is the measure of regulators ability to reject ripple voltages, how much it is better to reject the ripple. It is usually expressed in dB, so इससे टिपिकल वैल्यू देख लेते हैं, इज 78 dB। थोड़ा बहुत मन में CMRR लाना, ठीक है, इसलिए इसको डीबी में दिया है। जैसे CMRR में था वैसे ही इसका है। और एक टर्म है टेम्परेचर स्टेबिलिटी, कि टेम्परेचर के साथ कितना स्टेबल है, और एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। टेम्परेचर स्टेबिलिटी और एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। सो इट इज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, all are change in output voltage per unit change in temperature and is expressed in, ये बहुत जगह 555 वगैरह से लेकर सब में आता है, expressed in either millivolt per degree centigrade, इसमें मेजर करते हैं, और ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। ppm क्या है कौन बताएगा? केमिस्ट्री में आया होगा, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन पार्ट में एक चेंज होना, 1.1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, पार्ट्स पर मिलियन। गेटिंग माय पॉइंट? 1 मिलियन में एक चेंज या 2 चेंज या 5 ppm मींस 5 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स चेंज। तो ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो जब भी मैंने जैसे एक टर्म बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक इसके बताना चाहता हूँ, ड्रॉप आउट वोल्टेज दैट इज VI माइनस VO should be greater than or equal to 2 volt. That is V in should be greater than equal to
आउटपुट वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से ज्यादा रहना चाहिए, यही बात जब भी बताया था मैंने। अब इसमें और टर्म है थर्मल शटडाउन वगैरह वगैरह, तो उसमें टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर किसी कारण से पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव गया तो वो अपने आप ड्रॉप डाउन टू 0 हो जाता है, द आउटपुट करंट ड्रॉप्स। अगर किसी गलती से यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट हो गया तो दीज आर दी फीचर। सो this completes, you can say, 7805 series of IC. Now this IC can be used as a voltage source as well as current source, even it can be used as a adjustable, मतलब इसको वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि गिव द स्कीमेटिक फॉर जनरेटिंग द 9 वोल्ट फिक्स्ड डीसी वोल्टेज, तो कैसे करोगे, कैसे तो दिखाओगे? 7809 की आईसी लगाएंगे। और ये बढ़िया 7809 के लगाना, यह ये सब चीजें दिखाना, इसमें इसको ग्राउंड करना, पिन नंबर दिखाना, ठीक है, और उसके कैपेसिटर कनेक्ट करना। ये जब करोगे तो आपको उनको लगेगा कि आप बराबर कर रहे हैं। सी आई इक्वल टू 0.33 माइक्रोफेराड, CO इक्वल टू 0.1 माइक्रोफेराड, और यहाँ लिखना 9 वोल्ट, ठीक है। BO इक्वल टू यहाँ लिखना अनरेगुलेटेड DC इनपुट which is the output of your rectifier, which can be output from rectifier वगैरह, जो यहाँ अनरेगुलेटेड आप दे रहे, ये पिन 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से। ऐसे आपको और बता रहा हूँ कि अच्छे बहुत सारे आईसी होते हैं जो हमको पढ़ना नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। IC 723, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जिसमें जनरली पावर सप्लाई में जो यूज होते हैं ना, इस टाइप के रहते हैं, जिसका अपन वेरिएबल आईसी यानी राइट फ्रॉम 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इन योर कोर्स, जस्ट आई एम मेंशनिंग, यू शुड नो IC 723, पर पहले था ये कोर्स में, बच्चों ने पहले के किसने पढ़ा है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। वैसे और एक आईसी आती है 3085, ये कंफ्यूज मत होना, मैं जो बाद में फंक्शन जनरेटर का बताऊंगा तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये भी एक रेगुलेटर आईसी। दिस इज व्हाट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ओके। सो आई होप this is clear to you? Yes sir. Okay, so I can jump to now a new topic. नहीं, एक और आपको टॉपिक इसी में सब टॉपिक टाइप का है। रेगुलेटर आईसी खत्म हुई 78 सीरीज। अब एक पावर एम्पलीफायर है आपको और एक फंक्शन जनरेटर है इसमें टॉपिक। तो जरा पावर एम्पलीफायर का थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम लोग पावर एम्पलीफायर, कोई बताएगा? लाउड स्पीकर के पहले। करेक्ट, परफेक्ट। तो ये पावर एम्पलीफाई करने का काम आता है, ठीक है। हमने पावर एम्पलीफायर के क्या क्या चीजें पढ़े, और उसमें हमारे को आईसी जो ये पढ़ना है यहाँ पे है IC LM380, विच इज ए पावर ऑडियो एम्पलीफायर। कौन कौन से पावर एम्पलीफायर पढ़े हमने जनरल टाइप के? क्लास ए, क्लास बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लास डी सुना है क्या? क्लास डी मुझे नहीं लगता सुना है क्या? नो सर। हाँ, अब इंटरेस्ट करके कभी तो भी जब फुर्सत मिले तो जरूर देखना। आजकल जो मोबाइल आते हैं ना, उसमें नया क्लास डी आ गया है, मतलब उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा है। हम जब क्लास ए पढ़ते तो आपने पढ़ा होगा कि उसकी एफिशिएंसी 50% करीब होती है, बराबर। क्लास बी की थोड़ी ज्यादा है, क्लास सी की बहुत ही अच्छी है, 75 के अबव है, बराबर है। अब उससे भी ज्यादा एफिशिएंट क्लास डी निकाला है उन्होंने, और वो इसलिए क्यों निकाल रहे हैं वो, उसमें हमारा लिमिटेशन क्या है हमारे मोबाइल का? पावर, बैटरी ज्यादा देर चलनी चाहिए और आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए, तो एफिशिएंसी ज्यादा होना। 50% अगर एफिशिएंसी, इसका मतलब 50% पावर इज लॉस्ट, ओनली 50% यू आर गेटिंग। सो वो लॉसेस कम करने के लिए हमको अलग अलग वर्जन में जाना पड़ता है, ठीक है ना। सो इट इज अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, मतलब ऑडियोस के है इसलिए। सो स्मॉल सिग्नल अगर एम्पलीफायर रहता है तो आप बोलते हैं उसको वोल्टेज एम्पलीफायर। अगर लार्ज सिग्नल रहता है, जो कि अभी आप बात कर रहे थे, उसी को बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा बोल देते हैं पावर एम्पलीफायर मतलब पावर एम्पलीफाई करता है, नहीं, वो टर्म बराबर नहीं है। इट सप्लाई ए लार्ज सिग्नल करेंट, टू करंट ऑपरेटेड, जैसे कि स्पीकर है, लोड सच एज स्पीकर्स और मोटर्स, ठीक है। इनको जो हमको हेवी करंट सप्लाई करना रहता है, अब अल्टीमेटली करंट हेवी है तो करंट इनटू वोल्टेज पावर ही होगा, इसलिए उसको नाम है पावर एम्पलीफायर, ठीक है। अभी अगर आप
कुछ रिलेट करना है थोड़ा सा कि क्यों ये ऐसा है। कि IC741 देखो हमारी ऑप-एम्प, इसका मैक्सिमम लोड करंट कितना रहता है मालूम है क्या? मतलब मान के चलो हम मैक्सिमम लोड यानी एकदम रेजिस्टेंस बहुत कम है, तब मैक्सिमम लोड होगा ना, जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना ज्यादा करंट जाएगा। तो मान के चलो विथ RL इक्वल टू 0, दैट इज शॉर्ट सर्किट, ये है 25 मिली एम्पियर, कुछ भी ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाता, 25 मिली एम्पियर। तो फिर क्या करना? तो सॉल्यूशन इज टू गेट अ पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो या तो पावर ट्रांजिस्टर यूज करो या पावर एम्पलीफायर यूज करो, पावर एम्पलीफायर की IC यूज करो। इसमें क्या होता है, पुश पुल क्लास भी एम्पलीफायर भी पढ़ा है आपने? यस सर। अच्छा, कोई फेमस पावर ट्रांजिस्टर आपको मालूम है? कोई पॉपुलर पावर ट्रांजिस्टर जो नॉर्मली बहुत यूज होता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर आपको मालूम रहना चाहिए, लगे तो मैं यहाँ जानबूझ के लिख देता हूँ। ये आपको बहुत जगह टकराएगा, कोई भी सर्किट में से लेकर किसी में भी। 2N3055 ये IC बहुत बार टकराती है। 3 पिन की IC कैसे? इस टाइप की रहेगी, अभी जो मैंने बताया था ना TO3 पैकेज, ये इस टाइप की, ये इस टाइप की IC। ये जनरली आप कहीं भी देखें तो पावर ट्रांजिस्टर करके रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी रहता है और बहुत जगह पावर एम्पलीफायर में। इसकी कैपेसिटी कितनी है ये समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए इसको देखो। 7.4 का कितना है मैंने बताया था, IL कितना दिखाया, 25 मिली एम्पियर, जबकि 2N3055 का है 15 एम्पियर। 15 एम्पियर यानी इतना होता है कि आप तो शॉक से मर भी सकते हैं। 5 एम्पियर के आगे ही या 5 एम्पियर वगैरह में ही अपने को बहुत ज्यादा शॉक लगता है, मिली एम्पियर में पता नहीं चलता, पर एम्पियर 1 भी एम्पियर हो जाए तो शॉक लगता है। तो 15 एम्पियर यानी बहुत ज्यादा होता है, यानी ये करीब करीब 115 वैट का है, 115। और पावर ट्रांजिस्टर का बीटा जो होता है वो बहुत कम होता है, नॉर्मली 20 to 70। और उसका जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है FT, ये 0.8 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब इतने ACs को भी पावर एम्पलीफाई कर सकता है। अब हमको जो पढ़ना है उसके ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। लेकिन आपको ये थोड़ा मालूम रहे इसलिए मैंने वो लिया है 3055। सो विल सी पावर एम्पलीफायर। अब इसका पिन डायग्राम, और ये मैं देखता हूँ कि अगर गूगल में अवेलेबल है तो दैट आई विल कॉपी इट। ये आपको दिख रहा है क्या पिन डायग्राम? थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ये देखो, ये पहला पिन नंबर 1 इज बाईपास, 2 इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 3 4 5 ये इतने ग्राउंड है, 3 4 5 ग्राउंड है, देन 6 इज इन्वर्टिंग एंड 7 इज अगेन ग्राउंड। बहुत सारे इसमें NC ये नो कनेक्शन है, पिन नंबर 9 ये आउटपुट है VO। ओके, अगेन दीज आर ग्राउंड। नॉर्मली क्या रहता है यहाँ पे ना, ये मेटल टाइप की 2 पट्टी निकली रहती है, ये 3 4 5 की और 10 11 12 ऐसी मेटलिक की स्ट्रिप रहती है, जो हम नॉर्मली हीट सिंक या कहीं पे लगा देते हैं, ताकि ये बॉडी जो बहुत गर्म होती है ना पावर के कारण, करंट ज्यादा ड्रॉ करने के कारण, तो वो हम थर्मल रनअवे से बचने के लिए उसको मेटेलिक पार्ट से यानी हीट सिंक से जोड़ देते हैं। ये भी नो कनेक्शन है, ठीक है। और ये +V यानी पावर सप्लाई इनपुट, ठीक है, बायसिंग, ये +V है। सो इन दैट वे दीज आर द पिन डायग्राम। तो राइट हैंड साइड में इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये पिन 14 जो बताया वो यहाँ पे दिखा है सप्लाई, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड कौन कौन से? 3 4 5 10 11 12 और 7 नंबर का भी ग्राउंड है। सो सिर्फ 2 और 6 इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग, एंड 8 इज आउटपुट। तो अब इसके थोड़े से फीचर्स देखेंगे विच यू शुड अंडरस्टैंड। इतने फीचर्स आपको मालूम रहे तो यू कैन यूज इट। सो इट इज एबल टू डिलीवर 2.5 वैट RMS टू एन 8 ओम लोड। अगर आपका 8 ओम का स्पीकर है तो इट कैन डिलीवर अप टू 2.5 वैट, मतलब आपका छोटा स्पीकर वगैरह है तो आसानी से अच्छे गाने बजा देगा। इट रिक्वायर्स मिनिमम एक्सटर्नल कंपोनेंट, तो कम से कम कंपोनेंट में आप बना सकते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। सो दीज आर इट्स बेस्ट फीचर्स यू कैन से। इट इज इंटरनली फिक्स गेन ऑफ, मतलब गेन भी फिक्स किया है ऑफ 50, दैट इज 34 डेसिबल 50। okay, these are its salient feature which I have drawn as a you can say notes, ठीक है। output automatically self centering to 1/2 of the supply voltage। क्या मतलब हुआ इसका? आउटपुट ऑटोमेटिकली सेल्फ सेंटरिंग टू 1/2 ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। अगर आउटपुट 12 वोल्ट है तो ये ±6 हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, 6 में 0 सेल्फ सेंटर कर लेगा। आया समझ में? यस सर। यस। आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रूफ
विथ इंटरनल थर्मल लिमिटिंग। मतलब अगर टेम्परेचर भी बढ़ गया या शॉर्ट सर्किट भी हो गया तो इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज शॉर्ट सर्किट प्रूफ। ओके, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रूफ। इनपुट स्टेज अलाउिंग इनपुट्स टू बी ग्राउंड रेफरेंस्ड और एसी कपल्ड। ठीक है, सो इट अलाउज इनपुट्स टू बी ग्राउंड रेफरेंस्ड और एसी कपल्ड। अब थोड़े से इसके रेंजेस लिख देते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो सप्लाई वोल्टेज रेंज है 5 वोल्ट टू 22 वोल्ट तक के आप कर सकते हैं। अब हाई पीक करंट कैपेबिलिटी इट इज 1.3 एम्पियर मैक्सिमम। इम्पीडेंस 150 किलो ओम। THD क्या होता है? टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और एम्पलीफायर में टर्म आया होगा ना, इट इज 0.2%। और बैंडविड्थ है 100 किलो हर्ट्ज। मतलब ऑडियो रेंज में तो ये इजीली यूज कर सकते हैं 100 किलो हर्ट्ज। दिस इज टिपिकली एट P out of 2 watt with speaker load या load equals to 8 ohm पे। so bandwidth is 100 kilohertz। ठीक है, और आप मैंने जैसे मेटेलिक पार्ट बताया था कि उसके पिन 3, 4, 5 और 10, 11, 12 उसको कॉपर लीड लगा होता है। कॉपर लीड फ्रेम यूज्ड विथ सेंटर में रहता है, सेंटर पिन्स ऑफ आइदर साइड, दोनों तरफ आइदर साइड। कौन कौन से पिन है? पिन 3, 4, 5 और 10, 11 एंड 12। ये एक साइड में, ये एक साइड में। कंप्राइजेस अ हीट सिंक। ये हम लोग यूज करते हैं। हेंस नो नीड टू यूज अ सेपरेट हीट सिंक की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी के मेटेलिक पार्ट हमारा बाहर निकाला होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर दी ऑडियो एम्पलीफायर। ओके, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब एक स्कीमेटिक थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे रहता है, दैट यू शुड स्टडी योरसेल्फ। मैं सिर्फ एक डायग्राम बताता हूँ ताकि ये और एम्पलीफायर कैसे रहता है आपको ये आइडिया आने के लिए। दिख रहा है आपको? हाँ, ये किस तरीके से कनेक्टेड रहता है ये दिख सकता है आपको कि यहाँ पावर सप्लाई दिया हुआ है +15। इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, तो ये इनपुट वोल्टेज हम गेन कम ज्यादा कर सकते हैं डिफरेंशियल इनपुट का। और ये पावर यहाँ पे लोड को या स्पीकर को दिया है। जनरली ये यूज काय में होता है मालूम है क्या? आपने वो छोटे वाले इंटरकॉम देखे क्या? वो रिसेप्शन के पास रहता है इंटरकॉम, इंटरनली फोन जब यूज करते हैं। यस सर। हाँ, बस ये इंटरकॉम का वही चीज है। यानी एक इंटरकॉम में यहाँ माइक है और यहाँ स्पीकर है। ठीक है, ये स्पीकर है। तो ये वायर से जाते हुए ये इसके पावर एम्पलीफायर से होते हुए इसके स्पीकर में आता है दूसरे आदमी के, और यहाँ का माइक जो है उसका इस पावर एम्पलीफायर से होते हुए इसके स्पीकर में आता है। इस तरीके से इसका माइक का एम्पलीफायर होके यहाँ आ रहा है, इसके माइक का एम्पलीफायर होके यहाँ आ रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। मतलब माइक और एम्पलीफायर एक केस में और माइक और एम्पलीफायर दूसरे केस में, और ये वायर्ड थ्रू पावर एम्पलीफायर जाता है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इंटरकॉम वगैरह में ये यूज होता है। एक्चुअली थोड़ा सर्किट में कनेक्शन में चेंज कब होता है? एक है गेन अप टू 300, इसका एक सर्किट अलग होता है, और वेरिएबल गेन अप टू 50, ये दोनों के लिए अलग अलग थोड़े से कनेक्शन होते हैं, दैट यू कैन सी योरसेल्फ। ठीक है, सो this is what I want to convey you regarding the power amplifier. Now the last IC that is mentioned in your course, which I use 8038. तो जब भी के IC से कंफ्यूज मत होना, इसलिए बोल रहा था। वो 3085 थी रेगुलेटर की, लेकिन हमको 8038 फंक्शन जनरेटर क्या होगा? फंक्शन जनरेटर आपने देखा है क्या करता है? वो फंक्शन जनरेटर बताओ सर। वो स्क्वायर वेव इनपुट। हाँ, तीनों चीजें मिलती है ना, तीनों चीजें मिलती है ना। साइन भी मिलती है, ट्रायंगुलर भी मिलता है, स्क्वायर भी मिलता है। बस ये उसका इंटरनल है। ये जो आईसी है, ये सिंगल आईसी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑल दिस थिंग। वी हैव स्टडीड अवर लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर या ऑप-एम्प से कि वी आर एबल टू जनरेट ऑप-एम्प बाय मींस ऑफ ऑसिलेटर, वी आर एबल टू जनरेट स्क्वायर वेव।
Similarly, we are able to generate the triangular. So these all applications are combined into a single IC. ठीक है? So this you have to study. मैंने यहाँ पे उसके फीचर्स आपको बता दिए है. क्या दिया है? लो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट विद टेम्परेचर, यानी 255 पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो लो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट मतलब लो चेंज इन फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर. अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्यों बोला? बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट द ऑसिलेशंस और functions to be generated. Then low distortion 1%, high linearity बहुत ही कम वेरिएशन होता है 0.1%. वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब बैंडविड्थ अप टू 300 किलोहर्ट्ज. ठीक है, 0.3 मेगाहर्ट्ज. वेरिएबल ड्यूटी साइकिल 2% टू 98%. ड्यूटी साइकिल क्या होता है अभी आपको बताया. ठीक है, हाई लेवल आउटपुट्स TTL मतलब 5 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक के हम लोग कर सकते हैं. एंड इट इज एबल टू जनरेट साइमल्टेनियसली साइन, स्क्वायर, ट्रायंगुलर. ओके, and very easy to use, just a handful of external components and you can get all these things. तो आप लोगों को इसका एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है. ये जो फंक्शनल डायग्राम है ना, that you should know. ठीक है, कि how this two comparator, through this comparator, flip flop, buffer and sine converter, we have utilized this one. So inside this IC 8038 such functional diagram is there. So just a little bit of this about this functional diagram you study.